السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے ننے منے میرے دوستوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ یہ کہانی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ آئیے ہم آج اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے دوستی دشمنی۔ آئیے ہم باقاعدہ اپنی کہانی کا آغاز کریں۔ کھلونے اور بس کھلونے، ایسے لگتا تھا جیسے اس کی زندگی کا مقصد ہی کھلونے جمع کرنا رہ گیا ہے۔ ابھی کل ہی اسے اپنی سالگرہ پر ڈھیر سارے کھلونے ملے تھے۔ یہ کھلونے دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہوتا رہا، مگر اس کا جی نہیں بھرا۔ سونے سے پہلے اس نے تمام کھلونے اپنے پلنگ کے قریب رکھی ہوئی ایک میز پر سجائے اور سو گیا۔ اسے تو خواب میں بھی کھلونے نظر آتے ہوں گے۔ اماں بی نے فراز کو دیکھ کر کہا، ہمارا بیٹا بڑا ہو کر انجینئر بنے گا۔ فراز کے ابو نے سوتے ہوئے فراز کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے کہا، فراز زبیری صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی ایک ننھی سی بہن تھی، ماریا، مگر ماریا بھی بہت چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی کہ اسے ابھی غوں غاں کرنے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہ تھا۔ زبیری صاحب ایک غیر ملکی ادارے میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، اچھی تنخواہ، لاتعداد سہولتیں، کسی چیز کی کمی تو تھی نہیں۔ پھر بھلا وہ فراز کی خوشی کی خاطر اس کی ہر فرمائش کیوں پوری نہ کرتے؟ ہر ماہ سب سے پہلے وہ فراز کے لیے کھلونے خریدتے، اس کے بعد گھر کی کوئی چیز خریدی جاتی۔ فراز کا چھوٹا سا کمرہ کھلونوں سے بھر گیا۔ شاید ہی کوئی کھلونا ایسا ہو جو فراز کے لیے نہ خریدا گیا ہو۔ سکول میں فراز کا سب سے اچھا دوست دانش تھا۔ ان دونوں کی دوستی ضرب المثل بن گئی تھی۔ عین ممکن ہے کہ یہ اس دوستی کی وجہ کھلونے ہوں۔ دانش بھی فراز کے طرح کھلونوں کا بے حد شوقین تھا، مگر ان دونوں کے کھلونوں میں بس فرق اتنا تھا کہ فراز کھلونے خریدا کرتا تھا، جبکہ دانش اپنی ضرورت کے کھلونے گھر کی بیکار چیزوں کی مدد سے خود ہی بنا لیا کرتا تھا۔ دانش کھلونے خریدنا چاہتا بھی تو کیسے خرید سکتا تھا؟ اس کے ابو ایک سکول میں معمولی تنخواہ کے ملازم تھے۔ کہنے کو تو وہ استاد تھے، مگر استاد کو پیسے ہی کتنے ملتے ہیں جو وہ زندگی کی دوسری ضرورتوں کے علاوہ بچوں کے لیے کھلونے بھی خرید سکتے۔ یہ تو اس کی سگڑ ماں کا کمال تھا کہ جس نے بہت چھوٹی عمر میں ہی دانش کو طرح طرح کے کھلونے بنانا سکھا دیے تھے۔ اپنے ہاتھ سے کھلونے بنانے کا شوق تو دانش کی گھٹی میں ایسا پڑ گیا تھا کہ اب تو اسے بازار کے کھلونے ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ اس نے ماچس کی خالی ڈبیوں سے ایک بہت بڑا محل بنا دیا۔ کپڑے کے قطروں اور بٹنوں کی مدد سے اس نے طرح طرح کے جانور بنا رکھے تھے، دیا سلائی کے پھول، انڈوں کے کھلونے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے غیر معمولی صلاحیتوں کا پتہ دیتے تھے۔ دانش کے گھر کوئی بھی مہمان آتا تو وہ دانش کی ذہانت اور اس کے کھلونوں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پاتا تھا۔ دانش اور فراز کی مس اکثر کہا کرتی تھی، دیکھنا ہماری کلاس کے یہ دونوں بچے بڑے ہو کر انجینئر بنیں گے۔ اس پر دانش اور فراز دونوں بے زبان جواب دیتے، انشاءاللہ ضرور بنیں گے۔ دانش اور فراز یوں تو اچھے دوست تھے، مگر گزشتہ چند روز سے فراز میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ اکثر دانش کو اس کی غربت کا تانا دینے لگا تھا، یا اس کی غربت کے حوالے سے کوئی ایسی چبھتی ہوئی بات کہہ جاتا جو کسی تیز دھار آلے کی طرح اس کے ننھے سے دل میں پیوست ہو جاتی، مگر وہ جواب میں کچھ کہنے کے بجائے خاموش رہتا۔ اس لیے اس کی تربیت بھی ایسی ہی ہوئی تھی۔ ایک روز ایسی ہی کسی بات پر اس کا دل بہت دکھا اور وہ گھر آ کر بہت دیر تک روتا رہا، مگر پھر ماں کی باتوں نے جیسے اس کے زخموں پر مرہم سا رکھ دیا۔ ماں بہت دیر تک دانش کو ان بڑے لوگوں کے قصے سناتی رہی جو غریب گھرانوں میں پیدا ہوئے، مگر اپنی عزم و ہمت سے انہوں نے دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ دانش نے ماں کی بات کو کاٹ کر پوچھا، ماں، امریکہ کا صدر ابراہم لنکن بھی تو غریب تھا نا؟ ہاں، وہ تو بہت ہی غریب تھا، ہم سے بھی کہیں زیادہ غریب۔ وہ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں پڑھتا تھا اور مٹکے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں پر کوئلے کی مدد سے لکھا کرتا تھا، مگر وہ کبھی مایوس نہیں ہوا اور پھر ایک دن امریکہ کا صدر بن گیا۔ ماں کی ایسی باتیں سن کر دانش کا دل بڑا ہو جاتا۔ اب تو اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ فراز یا دوسرے لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر پڑھے گا اور محنت کرے گا اور ایک دن بڑا آدمی بن کر سب کو حیرت میں ڈال دے گا۔ فراز سے دانش کے تعلقات روز بروز خراب ہوتے چلے گئے، مگر اس میں دانش کا کیا قصور؟ خود فراز کی عادتیں ہی اتنی بگڑ چکی تھی کہ لا محالہ یہ تعلقات تو کشیدہ ہونا ہی تھے۔ فراز
पढ़ने लिखने में ऐसा बुरा न था, बस ये रवैये ये रुपए पैसे का खेल इसके दिमाग में ऐसा आ बसा कि किस तरह गरीब को तो वो खातर में ही ना लाता था। खुसूसन दानिश तो आए दिन इसकी तलखी और जहरीली बातों का निशाना बनता, मगर इसके बावजूद खामोश रहता। दानिश और फराज दोनों अब हाई स्कूल की 8वीं जमात पास कर चुके थे, मगर इनकी कशीदगी में ज़र्रा बराबर फ़र्क न आया था, बल्कि ये इस वक्त और ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गई जब एक गैर मुल्की सकाफ़ती मरकज़ के ज़ेर तमाम बच्चों की बनाई हुई चीज़ों की नुमाइश में दानिश और फराज दोनों की चीज़ें रखी गईं, मगर फराज के खिलौने कोई इनाम हासिल न कर सके, जबकि दानिश की बनाई हुई चीज़ें अव्वल करार दी गईं। फराज की मौजूदगी में न सिर्फ दानिश के लिए अव्वल इनाम का ऐलान हुआ, बल्कि मेहमान खुसूसी ने तालियों के शोर में इसके सीने पर गोल्ड मेडल सजाया, और देखते ही देखते अखबार के रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स का जम गफ़ीर इनके गिरद जमा हो गया। फराज के सामने दानिश की इस गैर मामूली पजीराई ने तो जल्दी पर तेल का काम किया, और फराज की मुखालफत के बजाय नफरत और दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर गई। फराज और दानिश को ईज़ा पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने न देता था, मगर दानिश अब ऐसी बातों का आदी हो गया था। वो सुनी अनसुनी कर देता और अपने काम से काम रखता। दानिश का ख्याल था कि शायद स्कूल के बाद कॉलेज में इन दोनों का साथ न रहे, इस तरह कॉलेज में जाकर इस बदतमीज़ लड़के से निजात मिल जाएगी। मगर कॉलेज में इंटर करने के बाद जब दानिश का दाखिला इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हुआ तो फराज वहाँ भी किसी आसेब की तरह इसके सर पर मौजूद था। हैरत की बात तो ये थी कि यूनिवर्सिटी में इन दोनों का दाखिला इलेक्ट्रिकल के शोबे में हुआ था, और ये एक ही क्लास रूम में बैठा करते थे। अजियत के 4 साल मज़ीद गुजरना होंगे, इस तसव्वुर से ही दानिश कांप जाता था। यूं भी अब फराज स्कूल वाला फराज तो नहीं था, इसके गिर्द आवारा लड़कों का एक ग्रोह हर वक्त मौजूद रहता, और फराज अपने गुमराह दोस्तों को अपनी असल कुव्वत समझकर मजीद सरकश हो जाता। दानिश ने बार बार कोशिश भी की कि किस तरह फराज से इसकी सुलह हो जाए ताकि ये देरीना दुश्मनी ख़त्म हो जाए, दानिश सुकून से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर सके। मगर फराज तो किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह अपनी हट दर्मी पर कायम था। ऐसा लगता था कि जैसे दानिश को तंग करते रहना इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद हो। इंजीनियरिंग के दूसरे साल तक पहुँचते पहुँचते दानिश अपनी जहानत के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें बना चुका था जो यूनिवर्सिटी और मोहल्ले के लोगों को इसका गर्विदा बना चुकी थी। कम वोल्टेज से चलने वाले पंखे, पानी भरने के लिए खुद ब खुद चलने वाली और बंद होने वाली मोटर, चोरी के मुमकिन ख़तरे को भांपने वाला सायरन, और तार के बगैर 1 इंच का छोटा सा मगर ताकतवर एंटीना इसकी ऐसी ईजादें थीं जिस पर वो और इसके घर वाले बजा तौर पर फ़ख्र करते थे। फराज खिलौने खेलने वाला बच्चा तो नहीं रहा था, वो बड़ा हो चुका था, मगर इसके मशागल बड़े अजीब व गरीब हो गए थे। दिन भर ड्राइविंग करना और पैसे उड़ाना इसका महबूब मशगला था। गरीब लड़कों से नफरत का इजहार करके ना जाने क्यों इसे राहत ही सी महसूस होती थी। अपनी इन तमाम खामियों के बावजूद हैरत की बात यह थी कि इसके रिज़ल्ट अब भी अच्छे आ रहे थे। दानिश एक रोज़ अपने साइकिल में छोटा सा इंजन फिट करके यूनिवर्सिटी आया तो इसकी ये अजीब व गरीब साइकिल सब ने शौक़ से देखी और तारीफ़ की, मगर यह साइकिल फराज को एक आंख न भाई। यूनिवर्सिटी से वापसी पर फराज ने अपनी तेज़ रफ्तार कार से दानिश की साइकिल को ऐसी टक्कर मारी कि साइकिल तो तबाह हो गई, मगर ख़ुद दानिश भी कई हफ्ते बिस्तर से ना उठ सका। वो तो शुक्र हुआ कि बात खराशों और चंद ज़ख्मों तक महदूद रही। खुदा न खास्ता हाथ पाँव टूट जाता तो उम्र भर की माजूरी भी हो सकती थी। इस बात पर यूनिवर्सिटी में बहुत वावेला मचा, मगर होना क्या था, कुछ दिन तक ये बात भी पुरानी हो गई। दानिश और इसकी अम्मी सब्र के घूंट पी कर रह गए। कुछ करते भी तो क्या करते, नकार खाने में तूती की आवाज़ कब किसी ने सुनी है। खुदा खुदा करके इंजीनियरिंग के 4 साल हो गए। सालाना इम्तहान देते हुए दानिश की दोहरी खुशी हो रही थी। एक खुशी तो इसकी ये थी कि इसकी तैयारी अच्छी हुई और वो यकीनन पहली पोजीशन हासिल कर लेगा, और शायद इससे भी बड़ी खुशी फराज की दुश्मनी से निजात हासिल करने की थी। सचमुच ये खुशी तो बहुत बड़ी थी। इम्तहान ख़त्म हो गए, सिर्फ वाइवा बाकी था। वाइवा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ऐसे इम्तहान को कहते हैं जिसमें सवाल और जवाब का सिलसिला तहरीरी नहीं ज़ुबानी होता है। वाइवा में हर तालिब इल्म को इंजीनियरिंग का एक तजुर्बाती मॉडल और इसके मुतल्लिक़
तहकीकी रिपोर्ट भी जमा करवाना होती थी। मगर वाइवा से ठीक एक हफ्ते केवल फराज के वालिद एक हादसे में जाँ बहक हो गए। यकीनन ये एक बहुत बड़ा सदमा था। इस नागानी मौत ने फराज को झंझोड़ कर रख दिया। दानिश ने ताज़ियत के लिए फराज के घर जाने से पहले 100 बार सोचा, मगर इसकी हिम्मत न हुई। बिल्लाखिर माँ के समझाने पर दानिश फराज के यहाँ चला गया। बहुत से लोग फराज को हौसला दे रहे थे। वो ज़ारो कतार रो रहा था। इसे अपने अब्बू के यूं बिछड़ जाने का गम खाए जा रहा था। इसकी आहें और सिसकियां कम हुई तो वो इम्तिहान का जिक्र ले बैठा। इसे ये भी फिक्र था कि वो वाइवा न दे सका तो फेल हो जाएगा। इस बार तो फराज ने मेहनत भी बहुत की थी। अपना नामुकम्मल मॉडल और अधूरी तहकीकी रिपोर्ट और वाइवा न दे सकने का गम भी था। उसे बेचैन कर रहा था। अगले रोज़ वाइवे के मुतल्लिक़ उस्ताद प्रोफेसर इरफान साहब को एक ख़त मसूल हुआ। ख़त में लिखा था, वालिद के इंतकाल ने मुझे ज़हनी तौर पर मफलूज करके रख दिया है। मैं अपना मॉडल और तहकीकी रिपोर्ट जमा करवा रहा हूँ, लेकिन शायद अपना वाइवा न दे सकूँ। मेरी हालात के पेश नज़र रखते हुए मुझे पास कर दिया जाए तो मेरा मुस्तकबिल तारीक होने से बच जाएगा और मैं ज़िंदगी भर आपके एहसान मंद रहूँगा। फराज। ख़त के मज़मून से फराज की मजबूरियाँ यहाँ थी। चंद रोज़ बाद BA के नताइज का ऐलान हुआ तो यूनिवर्सिटी का हर लड़का दम बखुद रह गया। फराज ने पहली पोजीशन हासिल की थी। इससे भी ज़्यादा अहम खबर जो अखबारात का मौजू बनी वो ये थी कि जामिया इंजीनियरिंग के तालिब इल्म फराज ने अपनी बिजली पैदा करने वाला पंखा ईजाद करके बरकियात की दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद कर दिया। अखबारात में इस ईजाद की तफसीलात आ रही थी। इस ईजाद में हैरत और दिलचस्पी के कई और पहलू भी थे। मुल्क भर के लोग फराज को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। मुबारकबाद के खतूत आ रहे थे। आला तालीम के लिए इसका स्कॉलरशिप की पेशकश होने लगी। चंद रोज़ बाद यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में एक तकरीब का इनेकाद हुआ जिसमें फराज को गोल्ड मेडल दिया जाना था। इस तकरीब में सूबे के गवर्नर, यूनिवर्सिटी के चांसलर होने के नाते मेहमान खुसूसी थे। तकरीब का आगाज़ हुआ तो फराज को की अहम ईजाद के बारे में इज़हार ख्याल की दावत दी गई। फराज ने माइक पर आकर बोलना शुरू किया तो हर आंख इसे रश्क से देख रही थी। मोहतरम मेहमानान गिरामी, असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं आपकी मोहब्बतों पर आपका ममनून हूँ, मगर शायद आप ये बात नहीं जानते कि मैंने पहली पोजीशन किस तरह हासिल की। अपने अब्बू के इंतकाल के बाद मेरी ज़हनी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकता। यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने मुझे बताए बगैर मेरा प्रोजेक्ट मुकम्मल किया और इस प्रोजेक्ट को मेरे नाम से जमा करवा कर मेरा मुस्तकबिल बचा लिया। ये तालिब इल्म वही है जिसे मैंने परसों ज़हनी अजियत दी और इसे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा। पूरे हाल को जैसे सांप सूंघ गया। हर शख्स इस तालिब इल्म का नाम जानने के लिए बेचैन था। मेरा वो मोहसन दानिश है। दानिश अजीम इंसान है। दानिश बड़ा आदमी है। सदर मोहतरम, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो गोल्ड मेडल मुझे दिया जाने वाला है वो दानिश के गले में डाला जाए। इसका असल हकदार वही है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। चंद लम्हों बाद हज़ारों आंखों ने देखा कि फराज और दानिश भीगी हुई पलकों से बगलगीर हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस कहानी का सबक यह है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में अपने दोस्त के काम आए और मुश्किल वक्त से बाहर निकाले। हर तरह इस तरह की मदद करे। इसके साथ ही आज की कहानी का इख्तिताम होता है। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।